call is now being recorded. So a term occurs that is critical point. And how we define critical point? A point where the saturated liquid line meets with saturated vapor line is known as critical point. And at critical point, latent heat is zero. So we know this is our phase change diagram. So if we draw TS diagram or TV diagram, this is temperature axis, this is entropy axis. So at a constant pressure, we have this line. This line is a constant pressure line. Okay. Suppose at this pressure, this is the pressure of 1 atm. Okay. If we draw another line at a higher pressure, we will get this line. Suppose this is at 5 atm. Okay. So this is the saturated liquid point and this is the saturated vapor point for the pressure of 1 atmosphere. And for 5 atmosphere, we have, this is the saturated liquid point and this is the saturated vapor point. Okay. This line is a constant pressure line. It means in this line, pressure remains constant. So at this point, the pressure is 1 bar, 1 atmosphere, and at this point, pressure is 1 atmosphere, pressure is 1 atmosphere, pressure is 1 atmosphere. It means this is a constant pressure line. It means for this entire line, pressure is constant. Now we have two constant pressure lines. This is the another pressure constant line. तो इस लाइन में भी क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा. तो इस पॉइंट पे पूरी लाइन पे प्रेशर कितना होगा, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Clear? If we join all the saturated liquid points and all the saturated vapor points, we have two lines, saturated liquid line and saturated vapor line. Clear? So the point where saturated liquid line, meets with saturated vapor line is known as critical point. This is the latent heat. ये क्या है? Latent heat of vaporization at pressure 1 atmosphere. And this is the latent heat of vaporization at pressure 5 atmospheric pressure. So we know when the pressure is increased, our latent heat value is decreased. And at a critical point, its value becomes 0. Clear? Yes, sir. Clear? Okay. So critical point is defined as the point at which the saturated liquid and saturated vapor state are identical. यानी कि अब जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, आप उसमें क्या बोलोगे? सपोज दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट. तो यहां पर क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है या सैचुरेटेड वेपर है? यू कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि वहां पर जैसे ही लिक्विड आ रहा है वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो यहां पर क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर स्टेट एक ही है. ओके, दैट्स व्हाई द लेटेंट हीट इज 0. The temperature, pressure and specific volume of a substance at critical point are called respectively critical temperature, critical pressure and critical specific volume. अगर हमारे वाटर की या किसी भी सब्सटेंस की स्टेट कहां पर है, क्रिटिकल पॉइंट पे, तो जो वहां पर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर. जो टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर. सिमिलरली वहां पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम. And the value for the water is, pressure is 22.06 megapascal. Okay, if you convert it in bar, you will get 220.6 bar. And temperature is
373.95 degrees centigrade, and the specific volume at critical point is V equals to 0.003106 meter cube per kg. Okay, so this is the value of critical pressure for water, and this is the value of critical temperature. Clear? Okay. Next topic is triple point. Okay, the pressure and temperature at which all three phases of a pure substance coexist known as triple point. अगर कोई प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा है जहां पर तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, अगर वो तीनों की तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. It must be understood that only on PT diagram is the triple point represented by a point, and on PV diagram it is represented by a line. देखिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो उस पॉइंट पर जो भी प्रेशर या टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर. दैट इज क्लियर व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर तीनों फेसेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, और अगर हम ट्रिपल पॉइंट को अब बोल तो इसको पॉइंट रहे हैं, मगर आप अगर पीटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रिपल पॉइंट पॉइंट ना होके क्या है, फिर नहीं, सॉरी, पीटी डायग्राम में ये पॉइंट पॉइंट ही है, बट ऑन पीवी डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. देखिए, this is the PT diagram. So on PT diagram, this triple point represented by a point. So triple point क्या है, PT diagram में एक point है. तो ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है और ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट है. इस फेज में लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, इस फेज में इस वाले एरिया में क्या है, वेपर है, और इस वाले में सॉलिड फेज है. तो सॉलिड, liquid, vapor simultaneously coexist कर रहे हैं at a point that is known as triple point. But when we talk about PV diagram, on the PV diagram, pressure versus volume diagram, this triple point is a line. यहाँ पे क्या है, देखिए, सॉलिड और वेपर, लिक्विड और वेपर, और इस तरफ सॉलिड लिक्विड. सो इट मीन्स वो पॉइंट जहां पर तीनों फेसेस एग्जिस्ट करते हैं वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है. और ये बात आप याद रखेंगे कि पीटी डायग्राम में जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है उसमें ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट है, बट ऑन पीवी डायग्राम इट इज अ लाइन. ओके, नेक्स्ट इज फेज डायग्राम. We have already studied the phase diagram.
My voice is clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the temperature versus volume diagram. Suppose सर we आपकी आवाज have, नहीं आ रही. हेलो. hello, आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो. listen. बेटा और किसको नहीं आ रही आवाज, किसको प्रॉब्लम हो रही है? My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी को बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी. ओके, बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है. Suppose we have a container in which we have a water. इनिशियली शुरू कर रहा हूं दोबारा से वही डायग्राम. Suppose our temperature T equals to 20 degree centigrade and pressure is 1 atmospheric. And pressure is 1 atmospheric. So what is our boiling point or saturation temperature? For this condition, what is our boiling point and saturation temperature? 100 degree centigrade. 100 degree centigrade. Okay. Suppose our initial state is here. Now we heat the water. When we heat the water, its temperature will increase. Okay. And we will reach at saturation temperature. It means our liquid reach at a 100 degree centigrade. It means it is a saturated liquid condition. Now, if we heat the water, temperature will increase. Yes, sir. Initially, we have water at 20 degree centigrade. When we heated it, it reached at 100 degree centigrade. अभी अपने saturation pressure पे temperature पे पहुंच गया है. तो अब इसको अब और हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा वाटर का. Yes, sir. No, sir. यस सर, कौन बोल रहा है? No, sir. हर्ष. Yes, sir. During a phase change process, temperature remain constant. अगर कोई अपने saturation temperature पे पहुंच गया तो यानी कि अब क्या होगा? फेस चेंज होगा. और जब फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. Like this. Okay. Then it reach its saturated vapor condition. So it becomes saturated vapor. Now, if we heat the water, the temperature of this vapor will again increase. So this condition is subcooled liquid or compressed liquid. This is liquid plus vapor phase change condition, and this is the superheated vapor. यहाँ तक सबको clear है? The same condition. Yes, sir. The same condition we will draw on PV diagram. The same condition we will draw on PV diagram. बताइए कैसे होगी? Anyone? Can you draw the same line on PV diagram? दीपक. Yes. कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? पीवी डायग्राम में सेम प्रोसेस कैसे ड्रॉ होगी? अच्छा, प्रोसेस कौन सी है ये बताइए. प्रोसेस कौन सी है ये बताइए. जब ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया तो प्रोसेस कौन सी थी? क्या कांस्टेंट था पूरी फॉर द एंटायर प्रोसेस? Pressure. प्रेशर कांस्टेंट था. तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे ड्रॉ होती है?
टी कौन? अरे कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है वो पीवी डायग्राम में कैसे ड्रॉ होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होती है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्रोसेस कौन सी थी हमारी? आइसोबारिक पूरी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट था। ओके, तो जब पूरी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट था, तो जो लाइन ड्रॉ होगी इस प्रोसेस के लिए और पीवी डायग्राम क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। So how do you draw this line? Like this. Okay, so this is our initial state. This point, ये वाला point. Similarly, ये वाला point, saturated liquid. This point is saturated vapor, and this point is superheated vapor. नहीं आया समझ में? Suppose this is 1, this is 2, this is 3, and this point is 4. So for the entire process, this is our initial process 1, 2, 3, 4. ऐसा क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इस पूरी लाइन के लिए प्रेशर कैसे था? कांस्टेंट प्रेशर था। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। नहीं आया समझ में? दैट इज क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर? Yes, एकदम sir. क्लियर है? ओके, वेरी गुड। Suppose we have a container and this container contain ice. क्या है? Ice है। At which temperature? At temperature which is equal to -20 degree centigrade. हमारे पास कंटेनर में क्या है? आइस है। कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, that is clear, and the pressure is constant which is equal to 1 atmospheric pressure. Clear? Yes, sir. Now we want to draw the temperature versus volume diagram. अभी हमारे पास क्या है? आइस कितने पे? -20 पे। ध्यान से सुनिएगा। अब हम इस कंटेनर को कुछ हीट सप्लाई करते हैं Q, तो क्या होगा? आइस मेल्ट हो जाएगी। क्या होना चाहिए? जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? सर टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा। सो इट इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट इट बिकम -19, then -18, then -16, and similarly it become -10, then 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करेगा और कहां तक पहुंच जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब आइस हमारे पास क्या सारी की सारी एक साथ मेल्ट हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे मेल्ट होगी, जैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, लाइक दिस। अब सारा का सारा हमारे पास क्या बन गया है? वेपर। अरे वेपर कहां से बन गया? वाटर। वेपर में आ गया। हाँ। Now temperature is still 0 degree centigrade. Now if you provide the heat, the temperature of this water will increase and it reach at a temperature of 100 degree centigrade. अब क्या होगा? अब टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से, और सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इट विल बिकम सुपर हीटेड वेपर। नहीं आया समझ में? क्लियर? आ गया सर। इस प्रोसेस को अगर मैं पीवी डायग्राम में ड्रॉ करूं तो अगेन स्ट्रेट लाइन। पहले हमारे पास 20 डिग्री पे आइस थी, फिर हमारे पास 0 डिग्री पे आइस थी, फिर हमारे पास 0 डिग्री पे वाटर था, फिर 100 डिग्री पे वाटर था, फिर हमारे पास 100 डिग्री पे वेपर थी, और फिर सुपर हीटेड वेपर थी। लाइक 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? इसमें ट्रिपल पॉइंट कौन सा होगा? ट्रिपल पॉइंट बेटा यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी ट्रिपल पॉइंट, ठीक है? अभी सिर्फ फेस चेंज समझिए। ट्रिपल पॉइंट के लिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया था प्रीवियस, ये वाला, जहां पर
ये पूरा अगर इस वाली लाइन को देखें तो इस पूरी लाइन में क्या है, सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों को एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये वाली कंडीशन थी आपके फेस चेंज की सॉलिड लिक्विड वेपर की। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, आपने डायग्राम लिया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर कोई प्रोसेस हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, उसमें एक पॉइंट क्या है हमारे पास, जब सॉलिड है, ओके, अब हमने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड करी, तो हमारे पास क्या आ गया, सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, यानी कि अपने किस पे पहुंच गया, वो सैचुरेशन पॉइंट पे। अब सॉलिड स्टार्ट हो रहा है मेल्ट करना, और तीसरे पॉइंट पे सारा का सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड अपने किस पे पहुंच गया, वेपराइजिंग स्टेट पे, तो यानी कि लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, और इस पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। ओके, सिमिलरली हम अलग अलग प्रेशर के लिए इस तरीके से हम लाइनें खींच सकते हैं। ओके, ये सपोज दिस इज एट 1 एटमॉस्फेरिक, दिस इज एट 5 एटमॉस्फेरिक, एंड दिस इज एट 10 एटमॉस्फेरिक। सिमिलरली जब हम इन लाइंस को मिलाएंगे, जब हम इस लाइन को मिलाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, जैसे हमने क्या करा था, पहले सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट जितने थे उनको मिलाया था, सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है उनको मिलाया था, सुपर हीटेड। अब क्या करेंगे, जितने सॉलिड वाले पॉइंट थे सॉलिड वाले को मिलाएंगे, जहां पर सॉलिड स्टार्ट हो रहा है मेल्ट होना वहां पर मिलाएंगे, और जहां पर वेपर बनना, सुपर हीटेड वेपर बनना शुरू हो रही है वहां पर मिलाएंगे। अगर हम ये सब करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, इस तरीके से एक डायग्राम मिल रहा है। यानी कि इस वाले पॉइंट पर क्या है हमारा सॉलिड, इस वाले पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड इस वाले एरिया में, और इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या है, लिक्विड, और यहां पर लिक्विड प्लस वेपर, और इस वाले पॉइंट पर वेपर। ओके, रिमेंबर दैट दिस इज पीवी डायग्राम। तो जो हमारी लाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ओके, देखिए इनिशियली हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना, जब सॉलिड था, सॉलिड को यहां पर सॉलिड होगा, सॉलिड को हीट किया क्या 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 लिक्विड इस वाली स्टेट पर आया 2 पॉइंट पर, और फिर क्या बना, लिक्विड, कंप्लीटली लिक्विड बन गया। अब इस वाले पॉइंट पे उसको और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड वेपर स्टेट पे पहुंच जाएगा, और फिर वहां से लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और इस पॉइंट पर सैचुरेटेड वेपर है, और अगेन उसको हीट करेंगे तो सुपर हीटेड वेपर मिलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। पीवी डायग्राम से उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट अगर हम टीएस डायग्राम देखें तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी द टीएस डायग्राम। इनिशियली हमारे पास आइस थी, आइस को हमने हीट किया, कब तक हीट किया, जब तक वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना पहुंच जाए। जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, अब उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, वो सिर्फ फेस चेंज करेगा। 3 पॉइंट पर आ गया। अब 3 पॉइंट पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा कहां तक, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक। सपोज दिस लाइन इज एट 1 एटमॉस्फेरिक, सो दिस एट अ 4 पॉइंट टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फेस चेंज होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और वो 5 पे पहुंच जाएगा सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में, और यहां से अगर और हीट देंगे तो वो सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। सो दिस इज एट, सपोज आप प्रेशर, अगर हम प्रेशर को राइज करेंगे देन वी विल गॉट दिस लाइन, अगर और प्रेशर राइज करेंगे तो हमको मिलेगी इस तरीके की लाइन। क्लियर? अब इन सारे पॉइंट्स को हम अगर आपस में जोड़ दें, किन किन को जोड़ें, देखिए ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, सैचुरेटेड लिक्विड, ये वाला पॉइंट क्या था, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर। अगर इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगी कौन सी लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इस वाले पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड वेपर लाइन। और दोनों पॉइंट जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली ये वाले पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे जहां पे लिक्विड बन गया था, जहां पर हमारा सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन गया था, और यहाँ पर क्या था, हमारे पास सॉलिड था 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इससे नीचे हमारा सॉलिड जब कूल था। तो इन सारी लाइंस को हम आपस में जोड़ते हैं, और हमको जो डायग्राम मिलेगा वो कहलाता है फेस चेंज डायग्राम। इनिशियली मैंने सिर्फ आपको लिक्विड और वेपर के लिए फेस चेंज डायग्राम दिखाया था, बट नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दिस डायग्राम टू द सॉलिड फेज आल्सो। तो ये डायग्राम है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर का। ओके, अब देखिए, तो जो ये वाली लाइन है दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट। यहां पर देखिए सॉलिड भी है,
लिक्विड भी है और वेपर भी है। ओके, इस वाले फेज में क्या है, सिर्फ सॉलिड है यहाँ वाले एरिया में। इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड मेल्ट हो रहे हैं, तो सॉलिड प्लस लिक्विड। बट एक बार लिक्विड सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया तो सिर्फ लिक्विड है। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो सैचुरेटेड लिक्विड बनेगा, तो इस वाले फेज में लिक्विड प्लस वेपर है। और अगर यहाँ से सैचुरेटेड वेपर स्टेट से ऊपर चले जाएंगे तो वेपर फेज में चले जाएंगे। ओके, दिस पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, वेपर। क्लियर? क्लियर बेटा? और बताना है एक बार। एक बार और बता दो सर ये। देखिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि लाइनें बहुत ज्यादा हो जा रही हैं, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें आइस है, दिस इज द आइस, एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द आइस इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ भी ले लीजिए। -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी -10 डिग्री सेंटीग्रेड कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर क्या आइस मेल्ट होगी? आइस मेल्ट होगी यहां पर? नहीं होगी। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो आइस मेल्ट नहीं होगी, पहले वो किस पर आएगी, अपने सैचुरेशन पॉइंट पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको क्या किया हमने, हीट किया, अपने किस पे आ गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अभी क्या है हमारे पास, सिर्फ आइस है। और इसको अगर हम हीट करेंगे अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब ये लिक्विड आ गया हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या है, इस कंटेनर में फुली लिक्विड। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर राइज करेगा। कहां तक करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेगा। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, फेज चेंज होगा, लिक्विड स्टार्ट होना शुरू होगा, किसमें, वेपर्स में, और सारा का सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड वेपर पॉइंट। अब इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, सिंपल। यही यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे पास आइस थी, आइस को हमने हीट किया, वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया, फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, मेल्ट हो गया, सारा का सारा लिक्विड बन गया। अब लिक्विड देखिए, यहाँ पर पूरा सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड है, यहाँ पर सिर्फ लिक्विड है। अब लिक्विड का टेम्परेचर राइज हो रहा है, कहां तक, सैचुरेशन टेम्परेचर तक, और उसके बाद और हीट दे रहे हैं तो लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है वेपर में, और कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से हम डिफरेंट प्रेशर्स पे डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और हम अगर इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा फेज चेंज डायग्राम, जो क्या कर रहा है, तीनों फेजेस के लिए है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। Okay. Now move to the another diagram that is known as Mollier diagram. We have seen the phase change diagram on temperature versus volume, temperature versus entropy, pressure versus volume. हमने ये तीनों डायग्राम देख ली। जो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी बिल्कुल सेम डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम भी हमने देख लिया। ओके, नाउ द अनदर डायग्राम इज एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। अनदर डायग्राम इज बिटवीन एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। तो वो डायग्राम, फेज चेंज डायग्राम जो एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी होता है, इज नोन एज मोलियर डायग्राम। बहुत यूजफुल है न्यूमेरिकल करने में। ओके, देखिए, जब हम लिक्विड वेपर डोम देख रहे थे, किसमें, टीवी में, इवन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में किस तरीके से होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में भी इस तरीके से ही होता है। ये टीवी का है, ये टीवी का है। बट इन एचएस डायग्राम देखिए, ये जो है डोम, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर डोम, जो ये पहाड़ जैसा है, ये एचएस डायग्राम में तिरछा होता है,
इस तरीके से होता है, ये है। थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने बाकी डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं, सेम उसी तरीके से ये डायग्राम भी है, ये इसका डोम है, ठीक है। और ये वाली लाइंस जो हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये वाली लाइन टेम्परेचर लाइंस है, ठीक है। तो जिस टाइम आपके पास मोलियर डायग्राम होगा उस टाइम आपको मोलियर डायग्राम भी समझाना, ठीक है। जबकि कोई प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलियर डायग्राम, सो एट दैट टाइम वी कैन सी what is the use of Moller diagram. But basically Moller diagram क्या है? Moller diagram जो जैसे हमने phase change diagram draw किए थे on TS axis, TB axis and PV axis, similarly this is also a phase change diagram on enthalpy versus entropy diagram. Okay, तो डॉक्टर मोलियर थे, उनने 1904 में क्या किया था, एक आइडिया दिया था कि अगर एंथैल्पी को हम एंट्रोपी के वर्सेस में प्लॉट करें तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि क्या है कि हम जितने भी अभी न्यूमेरिकल, अभी हम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रैंकाइन साइकिल, तो इस डायग्राम में क्या है, जैसे टीएस डायग्राम में हीट ट्रांसफर के लिए एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, बट इस वाले एचएस डायग्राम में डायरेक्टली हम एच की लेंथ मेजर कर सकते हैं और देन वी कैन डू अवर कैलकुलेशन डायरेक्टली। ओके, तो जो टीएस डायग्राम होता है, अगर उसमें हमें हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करते हैं, with the help of area। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोसेस के अगेंस्ट। सपोज दिस इज टीएस डायग्राम और इसमें कोई हीट ट्रांसफर हुई है, तो हीट कितनी ट्रांसफर हुई है, दैट मच अमाउंट। और अगर यही डायग्राम एचएस डायग्राम है तो इसमें हीट कितनी ट्रांसफर हुई है, डायरेक्टली हम स्केल से मेजर कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितनी दूर पे गए, तो जितना ये डिफरेंस होगा वही हमारी हीट ट्रांसफर होगी। ओके, तो वी do not require to calculate the area. That's why this Mollier diagram are very important in the thermodynamics when we are doing calculation of power cycles. Okay, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं एक रैंकाइन साइकिल जब हम कर लें तो Mollier डायग्राम का यूज भी समझ में आएगा। ओके, यहां तक क्लियर बेटा सबको? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रैंकाइन साइकिल। ओके, रैंकाइन वेपर पावर साइकिल और रैंकाइन साइकिल। Rankine cycle is a theoretical cycle on which the steam power plant works. अब देखिए हमने क्या करा, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, और उसके बाद हमने पढ़ा कि वाटर का फेस चेंज कैसे होता है, कैसे लिक्विड को पहले हीट करते हैं, वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे जाता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वो सुपर हीटेड वेपर बनता है। तो हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो किस पे वर्क करते, स्टीम पावर प्लांट जो भी हैं वो, उसमें क्या हो रहा है, उनमें एक बॉयलर होता है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है, और वेपर को क्या करते हैं, टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं, तो हमको वर्क प्रोड्यूस होता है। वी नो कि वेपर में क्या है, पावर है। हमने पुराने टाइम पे स्टीम इंजन्स भी हुआ करते थे, जो रेलगाड़ीज होती थी वो किससे चलती थी, स्टीम पावर से। तो उसमें क्या होता था, हम कोल से कंटिन्यूअसली हीट देते थे, और वो कोल क्या होता था, जब बर्न होता था तो किसको, लिक्विड को वेपराइज करता था, और वो लिक्विड वेपराइज जो लिक्विड है जो स्टीम में कन्वर्ट हो गई है वो इंजन को रन करती थी। ओके, तो सिमिलरली जो ये रैंकाइन पावर साइकिल है, इसमें भी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम बनाते हैं, और स्टीम को टरबाइन में भेजते हैं, जहां टरबाइन में वो एक्सपेंड करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। जब टरबाइन रोटेट होती है तो हमको मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है, उस मैकेनिकल वर्क से हम इलेक्ट्रिक वर्क भी फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आपने एक साइकिल और पढ़ी थी इससे पहले, कौन सी साइकिल थी वो, कार्नोट साइकिल। सिमिलरली जैसे कार्नोट साइकिल थी वैसे ही रैंकाइन साइकिल भी एक साइकिल है, बट कार्नोट साइकिल इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल, बट दिस रैंकाइन साइकिल इज अ प्रैक्टिकल साइकिल। अब देखिए इसमें 4 प्रोसेसेस होती है, कौन कौन सी। फर्स्ट प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। फर्स्ट प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। सेकंड प्रोसेस होती है आइसोबारिक हीट एडिशन इन बॉयलर। Isobaric heat addition in boiler. Isobaric means pressure remain constant, so you will add the heat in the boiler at a constant pressure, so pressure remain constant. Next process होती है isentropic expansion in the steam turbine. तो जो हमारी वेपर जनरेट हुई हैं वो कन्वर्ट होंगी, वो एक्सपेंड करेंगी in the turbine and it will produce the work. So it is a, this process is isentropic, it means entropy remain constant.
Next process 4-1 is a isobaric heat rejection in the condenser. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रही है टू द सराउंडिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखिए फिर से याद कीजिए, रैंकाइन साइकिल क्या है, एक थ्योरेटिकल साइकिल है जिसपे स्टीम पावर प्लांट वर्क करते हैं। तो पहली प्रोसेस इसकी क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस में कंप्रेशन होगा, किसमें किसमें हो रहा है कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किसमें हो रहा है, पंप में। तो यानी कि पहले क्या होगा, जो वाटर होगा वो पंप में जाएगा और पंप क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा मतलब प्रेशर राइज करेगा। तो सबसे पहले वाटर किस में जा रहा है, पंप में जा रहा है, पंप में कंप्रेशन हो रहा है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट एंट्रोपी, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक। दूसरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, अब वो जो पंप से किस में जा रहा है वाटर, बॉयलर में। बॉयलर में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। जब वाटर है हमारे पास, उसमें हीट ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। और ये प्रोसेस जो हीट एडिशन प्रोसेस है, ये कौन सी है, आइसोबारिक, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमने हीट ऐड करी है, तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। अब जो हमारी जो स्टीम बनी है उसको टरबाइन में भेजेंगे, जहां वो टरबाइन को जैसे हाई स्पीड से जब वेलोसिटी के साथ हमारी क्या जाएगी, स्टीम जाएगी, तो टरबाइन से टकराएगी और टरबाइन को रोटेट करेगी। जब टरबाइन को रोटेट करेगी तो वर्क प्रोड्यूस होगा और हमारी जो स्टीम है वो एक्सपेंड करेगी आइसेंट्रोपिकली। तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे एक्सपेंड करेगी और वर्क प्रोड्यूस होगा। देन अब क्या है, जो जब कोई भी चीज एक्सपेंड करेगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वो लेस प्रेशर पे अपनी आइसोबारिक हीट रिजेक्शन करेगी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करेगी। तो देखिए आप यहां से देख सकते हैं कि एक रैंकाइन साइकिल में चार कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है पंप, दूसरा होता है बॉयलर, तीसरा होता है स्टीम टरबाइन और चौथा होता है कंडेंसर। क्लियर, रिपीट करेंगे, पहला कंपोनेंट क्या है, पंप, पंप, दूसरा बॉयलर, बॉयलर, तीसरा स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन और चौथा कंडेंसर। कंडेंसर। जो ये बॉयलर होता है ये क्या करता है, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करता है। जो बॉयलर होता है ये क्या करता है, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करता है। और जो कंडेंसर होता है वो क्या करता है, वेपर से लिक्विड कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर हमारे पास लिक्विड है उसको अगर हीट देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर हमारे पास वेपर है तो कंडेंसर में भेजेंगे तो वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द schematic diagram of your Rankine cycle. So it has four components. First component is pump, second component is boiler, third component is turbine, and the fourth component is condenser. Clear? यही चार कंपोनेंट थे। Yes sir. ध्यान से सुनिए, यही चार Yes कंपोनेंट थे। sir. पहले क्या हुआ, हमारे पास इस पॉइंट पर, वन पॉइंट पर हमारे पास लिक्विड था। इस लिक्विड को हमने भेजा पंप में, पंप में भेजा तो पंप ने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया। अब ये किस में चले गया, बॉयलर में। बॉयलर में क्या हुआ, हमने हीट ऐड करी है, तो जो ये लिक्विड गया है इसको क्या होगा, ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। जब ये बॉयल होना स्टार्ट होगा तो वेपर कन्वर्ट होंगी और वेपर हम भेजेंगे टरबाइंस में। टरबाइंस में भेजेंगे, टरबाइंस में ये वेपर्स क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी और इसका प्रेशर रिड्यूस होगा अगेन, और ये आ जाएंगी 4 पॉइंट पे। सो एट द 4 पॉइंट वी हैव स्टीम, हमारे पास वेपर हैं बट उनका प्रेशर रिड्यूस हो गया। देन इट विल सेंड टू द कंडेंसर। यस सर प्लीज, अंकित सर, सर प्लीज। So we have sent this vapor into the condenser where it reject its heat. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, अपनी हीट रिजेक्ट करेगा QL अमाउंट और दोबारा से हमारे पास लिक्विड आ जाएगा और इस लिक्विड को अगेन हम पंप में भेजेंगे। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअसली रन करती रहेगी। अब देखिए, कोई भी पंप है, पंप को रन करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, पंप अपने आप चलता है आपके घर में। जो पंप्स होते हैं वो पंप क्या करते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, प्रेशर राइज करके। तो उसके लिए क्या लगती है, पावर लगती है। कौन सी पावर, इलेक्ट्रिक पावर। सपोज हमने वर्क किया W, इलेक्ट्रिक पावर।
सो सपोज हमने WP वर्क सप्लाई किया किसमें, पंप में, और टरबाइन ने हमको वर्क प्रोड्यूस करके दिया WT। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी इट्स TS डायग्राम। हम इसका क्या करेंगे, TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये इस पूरी साइकिल के अंदर लिक्विड वेपर चल रहा है। क्या चल रहा है? लिक्विड वेपर। कभी लिक्विड है, यहां पर लिक्विड था तो यहां पर वेपर बन गया, फिर दोबारा से यहां पर वेपर था, यहां पर लिक्विड बन गया। तो यानी कि ये साइकिल किसके अंदर होगी? लिक्विड वेपर डोम के अंदर होगी। दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। सपोज हमारे पास दो प्रेशर हैं, एक प्रेशर है बॉयलर का और दूसरा प्रेशर है हमारे पास किसका? कंडेंसर का। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो प्रेशर है PB, ये बॉयलर प्रेशर की लाइन है, और इस पूरी लाइन के में प्रेशर कितना है? इस पूरी लाइन में प्रेशर कांस्टेंट होगा, और कितना होगा? अच्छा, कहां से समझ में नहीं आ रहा है? ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? इस लाइन को क्या बोलूंगा मैं? इस लाइन को क्या बोलूंगा? आवाज आ रही है मेरी? कुछ तो बोलो। यस सर, आ रही है। तो ये वाली लाइन, अरे कांस्टेंट प्रेशर लाइन नहीं है ये? इस पूरी लाइन में प्रेशर कांस्टेंट है Yes, कि नहीं sir. है? और इस वाली लाइन में पूरा जी, कांस्टेंट sir. प्रेशर है नहीं है? ये क्या है? PB। ये क्या है? PC। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? PB की वैल्यू ज्यादा होगी कि PC की वैल्यू ज्यादा होगी? पीवी की। PB की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि इस पूरी लाइन में प्रेशर कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है? PB के। और इस पूरी लाइन में प्रेशर किसके बराबर है? PC के। और ये PC की वैल्यू PB की वैल्यू से लेस। ओके, अब देखिए इनिशियली हमारे पास क्या था? 1 पॉइंट पर हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड था। सैचुरेटेड लिक्विड को हमने कौन सी प्रोसेस में किया था? पंप में कौन सा कंप्रेशन हुआ था? आइसेंट्रोपिक से आ गया। आइसेंट्रोपिक। सो वी विल ड्रॉ 1 to 2 पंप के अंदर। हर्ष बेटा माइक ऑफ कीजिए अपना, हर्ष। सो 1 to 2 क्या हुआ है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ है। तो आइसेंट्रोपिक मींस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, इट मींस द लाइन विल बी वर्टिकल। तो लाइन कैसी है? एकदम वर्टिकल, एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 to 2 हमने क्या किया है? कंप्रेशन किया है। कंप्रेशन किया है, इसका मतलब प्रेशर राइज होगा। कहां से? PC से PB के। तो हमने प्रेशर हमारा पहले इस पॉइंट पर कितना था? PC। और जब हमने उसको पंप में भेजा तो उसका प्रेशर बढ़ गया कितना? PB के बराबर। अब कितना हो गया है प्रेशर? PB इस वाले 2 पॉइंट पे। अब वो बॉयलर के अंदर एंटर कर रहा है। अब क्या होगा बताइए? बॉयलर के अंदर हमने हीट सप्लाई करी, तो अब वाटर का क्या होगा? सर वेपर में कन्वर्ट होंगे। अरे सीधे वेपर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पहले क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज करेगा। देखिए पहले उसका मतलब टेम्परेचर राइज करेगा अपने सैचुरेशन टेम्परेचर टेम्परेचर तक। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फेस चेंज होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद अगर उसको और हीट देंगे तो वो सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। देखिए हमारे पास 1 पॉइंट का लिक्विड था, हमने उसको पंप में भेजा। पंप में हमने क्या वर्क सप्लाई किया? WP। और वो क्या हुआ? उसने पंप ने उसका प्रेशर राइज कर दिया PB तक। PB में अब क्या कर रहे हैं? उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करेगा। जैसे ही वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर PB, उसका फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर में। और हीट देंगे तो देन वी विल गेट सुपर हीटेड वेपर। अब 3 पॉइंट पे हमारे पास क्या है? सुपर हीटेड वेपर। इस सुपर हीटेड वेपर को हम किसमें भेज रहे हैं? सुपर हीटेड वेपर को किसमें भेज रहे हैं बताइए? सर टरबाइन। टरबाइन में। टरबाइन में क्या हो रहा था? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा था। एक्सपेंशन मींस प्रेशर विल रिड्यूस। सो प्रेशर विल रिड्यूस आइसेंट्रोपिकली, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। सो ये क्या हुआ है? एक्सपेंशन। ओके, नाउ 4 से 1 कंडेंसर में जाएगा
सो हीट विल बी रिजेक्टेड आइसोबारिकली, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा. दिस इज योर रैंकाइन वेपर पावर साइकिल. फिर से बता रहा हूं, वर्किंग ध्यान से सुनिए. ठीक है. इनिशियली वी हैव सैचुरेटेड लिक्विड. दिस सैचुरेटेड लिक्विड इज सेंट इनटू द पंप. हमने क्या करा, हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड थी, इसको हमने पंप में भेजा. वी हैव सप्लाई द WP वर्क टू द पंप. हमने क्या करा, WP वर्क सप्लाई किया पंप को. जब पंप ने इसका प्रेशर राइज किया तो इसका प्रेशर PC से PB हो गया. ओके, इसका प्रेशर इंक्रीज कर गया. देन इट एंटर इनटू द बॉयलर वेयर इट गेट हीट. उसके बाद जो हमारा पास जो वाटर था वो अभी किस कंडीशन में है, ये सबकूल्ड लिक्विड है. 2 पॉइंट पे क्या है, सबकूल्ड लिक्विड. जब ये बॉयलर में एंटर किया, इसको हीट मिली, ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. देन इट कन्वर्ट इनटू द वेपर एंड उसके बाद इसको सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट किया 3 पॉइंट पर. ये वाली पूरी प्रोसेस जो हीट एडिशन इन बॉयलर हुआ है वो प्रोसेस कौन सी थी, आइसोबारिक. तो इस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है. अब 3 के बाद वो एंटर टरबाइन में. टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ कांस्टेंट एंट्रोपी पे और वो आ गया 4 पॉइंट. देन 4 पॉइंट से वो दोबारा से उसने अपनी हीट रिजेक्ट करी. कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास सैचुरेटेड वेपर थे ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. ओके, कंडेंसेशन हो रहा है, बॉइलिंग का रिवर्स. हम बॉयलर का रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो सैचुरेटेड वेपर थे वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होंगे एट प्रेशर P. वर्किंग कैसे है देखिए. प्रोसेस 1 to 2 क्या थी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और पंपिंग. वाटर एंटर इनटू द पंप at state 1 as saturated liquid and this is compressed isentropically to the operating pressure of boiler. बॉयलर में क्या किया, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे हमने हीट सप्लाई करी तो हमको क्या मिला, सुपर हीटेड वेपर. देन दिस सुपर हीटेड वेपर एंटर इनटू द टरबाइन वेयर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ है तो जब टरबाइन के अंदर सुपर हीटेड स्टीम जाएंगी तो वो वर्क प्रोड्यूस करेंगे. देन इन द फोर्थ प्रोसेस आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हुआ है, हमारे पास अगेन वेपर से लिक्विड कन्वर्ट होगी. अब इसका एनालिसिस आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं. तो सबसे पहले मैं लेता हूं पंप. तो पंप में कितना वर्क सप्लाई हुआ है, WP इज इक्वल टू H2 माइनस H1. हीट सप्लाई बॉयलर में कितना हुआ है, QH इज इक्वल टू H3 माइनस H2. हीट वर्क जनरेट हुआ है टरबाइन में कितना, WT इज इक्वल टू H3 माइनस H4. और जो कंडेंसर है उसमें हीट रिजेक्ट हुआ है, QL इज इक्वल टू H4 माइनस H1. ओके, सो दिस इज द analysis of Rankine cycle. If you want to calculate the efficiency, what is the efficiency? What is the formula of efficiency? Output upon Output upon input. What is output? Output कहाँ मिल रहा था हमको साइकिल में? सर वर्क प्रोड्यूस सर कहाँ जो हो रहा था? वर्क जनरेट हो रहा था टरबाइन में. कहाँ? सब प्रोसेस 3. यस, टरबाइन में. और कहीं पे वर्क सप्लाई तो नहीं कर रहे थे हम? सब प्रोसेस 1 to 2 में वर्क सप्लाई कर रहे पंप थे. में. तो नेटवर्क क्या होगा, WT माइनस WP. ओके, सो नेटवर्क क्या होगा, WT माइनस WP. और हमने हीट्स कितनी सप्लाई करी है, हीट कितनी सप्लाई करी है QH. बॉयलर में. सो वी कैन राइट एफिशिएंसी इक्वल्स टू W नेट अपॉन हीट सप्लाई. तो WT माइनस WP अपॉन QH. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. WT की वैल्यू ये आ गई, WP की वैल्यू ये आ गई और QH की वैल्यू ये रही. सो दिस इज द इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल. बेटा ये आपके में अगर आएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधे रैंकाइन साइकिल बनाने को, समझाने को. तो यू हैव टू ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम, जितने कंपोनेंट वाले हैं, TS डायग्राम, और साथ में ये एनालिसिस भी करनी पड़ेगी. अब कोई मुझे ये बताएगा बच्चा कि ये इक्वेशन मैंने कहां से लिखी, WP इक्वल्स टू H2 माइनस H1 मैंने सीधे सीधे कहां से लिखी? एनीवन? देखिए मैंने किसी भी इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, ये कहां से आया, QH H3 माइनस H4, WT H3 माइनस H4 ऐसे ही लिख दिया जहां से भी मन किया मेरा. ये कहां से लिखी मैंने इक्वेशन? ये इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, कैसे मुझे पता चला कि ये H2 माइनस H1 होगा?
बताइए। सर TS डायग्राम। है टीएस डायग्राम से कैसे लिख लेंगे? लो लिखो टीएस डायग्राम से, बताओ कैसे लिखी। ये रहा टीएस डायग्राम, बताओ कैसे लिखी। हम्म, बताइए बताइए। आपको मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बॉयलर पे लगाना सिखाया था, यस और नो? सर क्या आया था, कितनी Yes, हीट sir. सप्लाई करी है? H2 माइनस H1, H2 minus ये H1. समझाया था। अब बॉयलर यहाँ पे कहां पर था? बॉयलर कहां पर है? यहाँ पर 3 से 4, तो स्टार्टिंग क्या हो रही है? 1 से 2 थी, तो यहाँ से 2 to 3 है। देखिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन को। अगर प्रोसेस हमारी कहां पे थी? 1 से 2 थी, 1 से 2, और वहां पे क्या है? 2 से 3। तो हम ये लिख सकते हैं H3 minus H2 heat supply. So Yes, we have applied the steady flow energy equation for different component. हमने क्या करा? देखिए कंडेंसर के लिए इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, टरबाइन के लिए आपको इक्वेशन बताई थी मैंने। तो जस्ट वी हैव अप्लाइड द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हियर। तो हमने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं किया है, हमने क्या अप्लाई करी है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब क्योंकि ये क्या है? दीज आर द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? एक तरफ से मास आ रहा है, साथ में एनर्जी का इंटरेक्शन हीट और वर्क की फॉर्म में हो सकता है। So we have applied just steady flow energy equation, and with the help of steady flow energy equation, we got work in pump, heat supply in turbine boiler, work generated by the turbine, and the heat rejected in condenser. So we can, ये आपका असाइनमेंट है, एक डिफरेंट कंपोनेंट के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कीजिए और देखिए कि जो ये इक्वेशंस लिख के बताई हैं मैंने, ये सही हैं या गलत है। ओके, so after the applying the steady flow energy equation, you will got these equations, and then you can calculate the value of efficiency for the Rankine cycle. Clear? Clear बेटा? कोई डाउट आज के लेक्चर में? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Okay, in our next class we will start the psychometry. Okay, then your 4th unit will be complete. Okay, we will also do a numerical on Rankine cycle, एक numerical भी करेंगे और उसके बाद ये साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, वीडियो लेक्चर I will just upload the video lecture और इसकी PPT भी अपलोड कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, ठीक है सर। now you can leave the class. Thank you.